ہاں بھائی سیف علی. ہاں ہلو. ہاں سیف علی صاحب آواز آ رہی ہے؟ آگے آ رہی ہے. ہلو ہلو. آگے آگے کیا یار، تم لوگ تو بدنام کر رکھ دیے ہو. تو آپ کو کیا تم تکلیف لوگ ہو رہی ہے؟ آپ تو نان مومن ہیں. تم لوگ کیول مذاق اڑانا آتا ہے. آپ مومن ہیں نان تم مومن لوگ، ہیں؟ میں جو بھی ہوں تم کیا ہو؟ وہ تو سارا بھائی میں کرسچن بلاک بن کے کر دوں گا بیٹھا ہوا ہے. سیدھے. ٹائم پاس کا بالکل ٹائم نہیں ہے. کافی سارے مومن حضرات ہیں، ان سے بات کرنا ہے. آپ مومن ہے نہیں ہے؟ ہاں مومن ہوں. مومن ہے تو آپ کا جو ایکچوئل نام ہے وہ تو ٹھاکر ہے. ہاں وہ دھونی کا فین ہوں نا. آیت الکرسی پڑھ لیں. کائے پڑھ تاکہ تیرے ثابت ہو. کہنے سے کیا بے بھوسڑی ہے چوتیے. اوکے میں تمہارا باپ ہوں، بائی دا وے ماں سے پوچھ لینا. چل ان کو میں بین کر رہا ہوں، یہ پاگل انسان ہے یہ. نہیں وہ ماں سے پوچھنے چلا جائے گا ساحل بھائی. اب آپ بات کر لیں یار سلمان بردر سے، ماں سے پوچھنے گیا وہ. ہاں سلمان بھائی کیا سننا ہے آپ کو؟ قرآن سننا تھا آپ سے. قرآن سنا دے تھوڑا سا، ایک چلو صفحہ سنا دیجیے پلیز. ایک صفحہ بہت ہو جائے گا بھائی، تھوڑا سا سناتا ہوں. ساحل بھائی اچھا یاسین کی 4 آیتیں سنا دیں. یاسین ارے سناؤں؟ میں 4 ایک آیت میں دوسرا نہیں، لے کے آیا تھا. تھوڑا سا دل کر رہا زیادہ. ہے میرا یاسین سننے کو آپ کی زبان چلو سے. یاسین سن لیتے. چلو ہاں اوکے یاسین. نہیں طٰہٰ، سورہ طٰہٰ یاد ہے؟ سورہ طٰہٰ سنا دیجیے. یاسین سنا دیتا ہوں. یار میرے بھائی نے فرمائش کی ہے تو میری بھائی کو میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. اچھا چلیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق سبحان اللہ. الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان ہو گئے خوش اللہ. بھائی؟ سبحان اللہ. سبحان بہت اللہ. بہت. چلیے بہت خوب، آپ نے کم سے کم سنایا. اب پڑھتے رہے کم سے کم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. خوش؟ ماشاء اللہ. دیکھیے ابھی بات آپ کر نے لیں. سنایا. نہیں بہت، ہاں بہت اچھی بات ہے آپ نے سنایا. دیکھیے میں مناظرہ تو کر سکتا تھا، بحث بھی کر سکتا تھا، لیکن بحث کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے. بس میں بھی آپ کو یہ کیا سناؤں گا. مصیبت ہے؟ اچھا سنیے. کتنا پڑھتے ہیں روزانہ قرآن آپ؟ جی قرآن کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ ہاں ارے بہت پڑھا ہے بھائی. اب نہیں یار پڑھتے ہیں؟ ابھی یار بھی ساحل پڑھتے ہیں ٹائم کبھی ویسٹ کر کبھار. رہا ہے یار، یہ ساحل ٹائم ویسٹ بھائی کر رہا اسلام ہے. پہ بات کرنا ہے سلمان ابراہیم بھائی. مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے، میں قرآن سنا کے آپ کو پھر چلا جاؤں گا. میں کبھی پھر کروں گا. مجھے اچھا آج مجھے فٹافٹ نہیں سنا ہوگا. دو. چلو جلدی ہاں تھوڑا سا سنانا. جلدی سنا دو. کتنا ٹائم دیں گے آپ مجھے؟ 1 منٹ. 2 منٹ. 1 منٹ. چلو آگے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے پھر میں کچھ باتیں کر لوں گا. پہلے میں کچھ آیتیں پڑھ دوں گا آپ کو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا بات زبردست. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. یار اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زبردست. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ جی ہاں ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. طه جلدی سے کریں. حروف مقطعات میں تو اللہ نے قرآن اتارا اور اس نے بتایا نہیں تھا کا مطلب کیا. اوکے آگے. قرآن اتارا اور کیا بتا رہے تھے آپ؟ ہاں اللہ نے مطلب ہی نہیں بتایا. ایک آیت دے دی اس کا مطلب ہی نہیں بتایا. آگے چلیں. مطلب نہیں بتایا. کوڈ ورڈ ہے. کوڈ ورڈ اس کا جو ہاں کوڈ ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا کوڈ ورڈ. اللہ نے کوڈ ورڈ دے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں. امب کیا مطلب ہے امب. آگے چلیں دوسری آیت سے شروع کریں ترجمہ. نہیں مذاق دیکھیے سنیے سر آگے چلے نا. اللہ نے مطلب نہیں بتایا امب ہے. نیکسٹ آگے پلیز آگے چلیں. سر میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ. ٹائم بہت زیادہ لے لیا آپ نے آلریڈی. دوسری آیت سے جیسے یہ آپ کے لیے ہے. جیسے آپ سر دوسری آیت سے قرآن کا ترجمہ بتائیں جو آپ نے پڑھا ہے یار. دوسری آیت سے میں وہی بتا رہا ہوں. جیسے آپ کو بوجھ لگتا ہے قرآن تو اللہ تعالیٰ یار آئی ڈونٹ کیئر کہ تفسیر آپ کی کیا. ترجمہ بتائیں بھائی. ترجمہ بتا دو نا پیارے بھائی. کرنے تو دیجیے. ہاں بولیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت میں پڑے جائیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشقت میں پڑے جائیں گے. یہ آپ یہاں پہ آپ پہ یہ محمد کے لیے ڈائریکٹ ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے. پلیز اپنی تفسیر نہ لگائیں. یہ آیت محمد کے لیے ڈائریکٹ. اپنی تفسیر مت لگائیں. ہم نے آپ یعنی کہ محمد پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ یعنی کہ محمد مشقت میں پڑھیں. پلیز اپنی تفسیر مت کریں. ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا کس کے لیے آیت نہیں ہے؟ آپ کے لیے یار آگے چلیں گے. یہاں پہ محمد کے لیے آیت ہے. آپ کے لیے بھی. آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. قرآن میرے اوپر اترا. کیا قرآن میرے پہ اترا؟ نہیں آپ کے. ایک منٹ. قرآن اس آیت میں ما انزلنا الیک القرآن کیا مطلب ہے؟ قرآن کس لیے اترا ابھی پہلے بتا دیجیے. اگر اس آیت یار آئی ڈونٹ کیئر. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے. یہاں پہ کس کو مخاطب کیا ہے؟ انزال یعنی ایک حساب سے جیسے جو انسان جس انسان کو قرآن دیا گیا وہ حملہ الانسان یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. پھر اس کے ذریعے سے اس کی تعلیم ساری انسانیت. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن جیسے وہ آپ کے لیے جواب ہے نا کہ آپ پریشانی میں نہ پڑیں. قرآن اس لیے اتارا ہے. یار بھائی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ اچھا بھائی پیارے بھائی آگے پڑھو نا. ٹھیک ہے آگے پڑھو. کیا ہے اس کے آگے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی. یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اس میں نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. بولتا نہیں ہے. ارے سنو یار میں ترجمہ کر رہا ہوں. میں کیا بول رہا ہوں سلمان پیارے بھائی آپ صرف ترجمہ پڑھے. ٹھیک ہے اپنی تفسیر نہیں کرے پلیز. ترجمہ میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں. ساحل میں پڑھتا ہوں ترجمہ. چھوڑ دیں اس کو کہ چپ کر. میں اسکرین پہ لا رہا ہوں. اسکرین پہ دیکھو ابھی ترجمہ کیا ہے. اب چپ کر جاؤ تم. اب تم چپ کر جاؤ. تمہارا کام نہیں ہے بولنے کا. تمہیں میں نے بہت موقع دیا تم بولو. تم اپنی کل کے بغیر بول ہی نہیں سکتے. قرآن میں بھی دو بدٹ کرتے ہو. اوکے چپ یار پلیز چپ. خاموش. بولنے کا نہیں ہے جب تک سوال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ میاں یہاں پہ سپوزڈلی اللہ میاں فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. سپوزڈلی ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اسی لیے کیونکہ یہ محمد سے مخاطب ہے اللہ اس قرآن میں اس وقت. پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مشقت میں پڑھیں.
کوئی بھی تفسیر یہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے, یہ تو صرف یاد دہانی ہے. اللہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. اللہ بتا رہا ہے اپنے بارے میں, یعنی رحمان جو عرش پہ متمنی ہے. مکمل آگے, اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے, اور جو کچھ ان کے مابین ہے, اور جو کچھ زمین سب سے نچلے نیچے ہے. اگلی آیت دیکھیں, یہ کون بول رہا ہے. اور اگر تم بلند آوازوں کی بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی, نہایت مخفی بات کو بھی. ایک وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اسی کے سارے اچھے نام ہیں. یہ والی آیت وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, دیٹ از اللہ. یہ والی آیت کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے یا محمد بول رہا ہے؟ کون؟ اللہ ہی بول رہا ہے. تو اللہ کو یہاں پہ کہنا چاہیے میں ہوں وہ اللہ, میں ہوں اللہ, انا اللہ, اننی انا اللہ. سنیں, چپ کر کے سنیں سوال پھر جواب دینا. چپ کر کے سوال سنیں پھر جواب دینا. سلمان بھائی سوال تو سن لو پھر آپ جواب دینا. یہاں پہ اللہ کو لکھنا چاہیے تھا اننی انا اللہ لا الہ الا ہوا, کیونکہ اللہ پیچھے فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اس کو یہاں پہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی. اس نے کیوں بنایا, ورنہ یہ محمد کے منہ کا کلام ہے. بولیے سر. نہیں, محمد کے منہ کا کلام نہیں ہے. اب سنو, بولنے دو گے؟ ہاں پہلے لیکن سوال سمجھا آپ کو, سوال کیا ہے؟ سوال سمجھا آپ کو؟ ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ کو اگر بولنا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ اننی انا اللہ. ہاں یہ بولنا ہے نا. رائٹ. اور اوپر جو سیکوینس چل رہا ہے اس میں فرسٹ پرسن پہ چل رہا ہے, یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بولو. اب ان کا یہ الزام ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو کس کا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, یہ بتا رہے ہیں. جی بالکل, میں یہ بتا رہا ہوں. اچھا, ہاں اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بات کرنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ساحل بول رہا ہوں, ساحل بول رہا ہے, بتائیے, یہ ساحل بول رہا آپ سے بات کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ نے وہ کہا ہے, وہ تھرڈ پرسن میں ہے, وہ اللہ ہے. کیا ہو کے مطلب یہاں کیا ہے؟ یعنی کہ ساحل اگر بولے, ساحل بولے کہ وہ ساحل ہے, ساحل عربی کے معنی پورے طور پر ادا کر سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں, یہ تھرڈ پرسن میں یہاں پہ رہا ہے. نہیں, تھرڈ پرسن اللہ لا الہ, عربی سے پوری طرح واقف ہو, عربی سے پوری طرح واقف ہو. ہاں جی, اللہ لا الہ, اللہ لا الہ الا ہوا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی کے تمام اچھے نام ہیں. پیچھے اللہ ترجمے سے عربی کا معنی ادا ہو سکتا ہے, آپ بتائیے پہلے. اچھا, یہاں پہ اللہ اننی اپنے آپ کو انی کیوں نہیں کہہ سکتا, اننی کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا اللہ قرآن میں اپنے آپ کو اننی نہیں کہتا کئی جگہ پہ؟ تاکید کے لیے نا, تاکید کے لیے نہیں ہے. اللہ فرسٹ میں بات کر رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں موو کیوں کیا؟ انا کو جب بنایا جاتا ہے تو اننی بنا دیا جاتا ہے, انی بنایا جاتا ہے, اننی بنایا جاتا ہے. تو بات کرنے کے بول رہے ہیں, یہ لے پکڑے دو طریقے کو چھوڑے. یہ دیکھیں, یہ قرآن میں, یا قرآن میں اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے اننی انا اللہ کہہ رہا ہے, پڑھیں کہہ رہا ہے. اوکے, ناؤ یہاں پہ اللہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. یہاں بالکل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی لیے میری عبادت کرو. اور انا اللہ, اگر آپ اننی کو یہاں سے ہٹا بھی دیں, انا چلے گا نا, آئی ایم. یہ ساری چیزیں تاکید کے لیے ہوتی ہیں بابا. کیوں اب کیا آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے اس سے؟ ہوتی ہیں, کس نے لکھا تاکید کے لیے ہوتی ہیں؟ تو نیچے دیکھو نمبر 1 عربی, جو چاہے انگلش کا ترجمہ ہو چاہے جس زبان کا ترجمہ ہو, عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے, حق ادا نہیں کر سکتا. اوکے, سو اللہ نے قرآن ایک ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان کسی کو امب پتہ نہیں لگ سکتی, جیسا کہ طٰہٰ, الف لام میم, یاسین, ہا میم کاف عین صاد. اس کے علاوہ ہر دوسرا بندہ عربی کو امب نہیں جان سکتا. سنیں ذرا, سنیں ذرا, سنیں ذرا, سنیں ذرا. حضرت آپ کا آئی کیو لیول بہت نیچے ہے, کوائٹ فرینکلی. ارے بھائی کوئی بات کرو نا سلمان بھائی, تھوڑا رکو نا, رک کے بات کرو. اگر کسی لینگویج کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی تو پھر وہ لینگویج صرف اسی لینگویج کے لوگوں کے لیے ہے. آپ کو مسلمان کسی انڈیا میں, پاکستان میں, امریکہ میں, کینیڈا میں کسی کو بنانا ہی نہیں چاہیے.
क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी जुबान के लिए है। आप सुनिए, हाँ, क्या वो एक इंसान, एक्चुअल क्या एक अपनी मिनट, बात अल्लाह की क्या बात वो रख कभी ही नहीं पाएगा। क्या किसी जबान, क्या किसी एक शख्स के लिए ये मुमकिन है, एक शख्स के लिए कि वो अपनी बात को पूरी इंसानियत तक, तमाम लोगों तक एक ही बार में पहुंचा दे? मुमकिन है? So, इसका मतलब है कि अल्लाह जो है इंसानों की तरह है। नहीं नहीं, इंसान की बात, एक मिनट, अल्लाह तबारक तआला इंसान की तरह बताओ। नहीं है। इंसान पर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है। अल्लाह तबारक तआला, जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक तआला कोई जिस्म नहीं है, ना ही वो लोगों की तरह है। तो इसीलिए जो तो फिर इंसान आप थे अल्लाह की बात को आप आम लोगों की तरह क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि क्योंकि आम इंसान ये काम कर सकता कि नहीं कर सकता? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, मैंने कुरान तुम्हारे लिए आसान किया, आसान कर दिया है आसान ताकि किया। तुम ओके, उसको ये कैसा आसानी की है अल्लाह ने कि हाँ। आप कह रहे हो कि अरबी को कोई समझ नहीं सकता? नहीं, अरबी का हक नहीं, अदा नहीं कर सकता, मैंने ये कहा, मैंने हक समझ अदा नहीं नहीं कर सकता, ये नहीं सकता। कहा। हक तो फिर हक अदा हक नहीं में कर सकता। हक अदा हक किसे अदा कहते करना हैं? क्या होता है? हाँ, हक ये अदा क्या करना होता क्या है? होता है? तो सुनिए, अब लैंग्वेज अरबी का में इसका एक साहिल लफ्ज भाई है। देख जरा, लैंग्वेज का कोई गलत, हक भी होता है बाय द वे। इमेजिन करो हाँ, साहिल भाई, अच्छा, ये फर्स्ट किसी टाइम हुआ लैंग्वेज का है कोई हक कि नहीं होता है। लैंग्वेज, यार तू बोलती जाता है, तू सब्र नहीं करता क्या? तकलीफ क्या अरबी है के तुझे? बारे में आपको पता भी है कितने क्या कितने मिर्ची नहीं, लगी कितने हुई है? वर्ड्स हैं? ए, तेरे अरबी के पिछवाड़े के अच्छा सराब में सलमान मिर्ची लगी भाई, हुई है? है, कभी पता है? फ्रेंच के अच्छा 25 लाख एक मिनट, नहीं, एक 25, मिनट सुनिए सलमान भाई। अच्छा जी भाई, सुनो सलमान भाई, थोड़ा रुक रुक के बात करना यार, सब एक वो साथ जोश बोलेंगे में तो आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आदम आएगा। भाई जोश में आ रहे हैं, तो तो नहीं तो जी आप थोड़ा जब बोलने दे रहे ही नहीं, उनको कंप्लीट करने नहीं दे रहे, तो जोश में तो कोई भी आ जाएगा। थोड़ा सा रुको। आपसे ये सवाल है कि हक अदा करने का क्या मतलब है? हक अदा करने का मतलब ये होता है कि आदमी कोशिश करता है, लेकिन हूबहू वही काम कर दे, ये नहीं हो सकता है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, खत्म हो एक गई मिनट, एक साहिल भाई। मिनट। साहिल भाई मैं आता हूँ यार, हाँ आप एडम इससे एक बात मिनट, करें, गेम खत्म हो गई मैं थोड़ा इनकी। चलता हूँ इनके साथ। हाँ एक मिनट, एक मिनट, ये मस्त पॉइंट आ गया एकदम। हाँ जी साहिब भाई। ठीक है। हम्म। जब साहिल भाई में एक इसमें एक बात और, हाँ अरे ठीक है, भाई नहीं नहीं, एक बात नहीं, पहले पहले हम तरतीब से चलेंगे। चलिए ठीक है। अल्लाह का कलाम जो अरबी में है, उसको हम्म ट्रांसलेट करने में हम्म कोई भी उसका हक अदा नहीं कर सकता। यही हाँ, कहा कमा ना हक आपने? हाँ ठीक है, ये तो अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, उमा कदरुल्लाह हक कदरी। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, यानी आप ये मानते हैं जी जी, जितने लोग ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं ये इनको ये पिन मार रहे हैं, ये उन पिन तक, सिद्धार्थ पिन मार रहे हैं ये। यार रुको थोड़ा, यानी आप ये मानते हैं जितने लोग ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं उन हम्म तक अल्लाह का जो हम्म असल कलाम है हम्म और जो मतलब है हम्म। वो नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, ट्रांसलेशन इसीलिए आजकल आम तौर पे मुसलमान को कहा जाता है कि आप फसअलू अहल ज़िक्री, जो बातें आपको पता ना लग रही हो तो जो जानते हैं, उलमा जानते हैं, उनसे पूछा करो। अच्छा तो जो वो ठीक है, हाँ, अभी अभी जो आपको एडम साहब ने तर्जुमा वो दिखाया जोश में था, आ जा रहे थे, बहस यार करनी चाहिए। यार रुकेंगे थोड़ा। अभी जो आपको एडम साहब ने तर्जुमा दिखाया था जी वो जी, फसअलू अहल ज़िक्री हम्म। वाले का ही बताया था। नहीं, वो इन्ननी अनल्लाहु और अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, तो हमने अरे उनसे यही तर्जुमा कही। उसने, भाई तर्जुमा उसने फसअलू अहले जिक्र का ही बताया था ना, तर्जुमा उसने खुद से तो नहीं किया था। आपको स्ट्रीम उन्होंने में, तर्जुमा भी नहीं दिखाया, किसका तर्जुमा था नंबर एक, हमने बता भी किस किताब का, मतलब अरे तर्जुमे स्क्रीन में पे ये कौन लो, था? स्क्रीन पे देख लो, ये लो, हाँ, कौन तर्जुमा यहाँ से दिखा? नहीं, ये जो है तर्जुमा किसने किया है मुझे पता नहीं है ना, ये तर्जुमा किसने किया, मैं तो अरबी देख कर पढ़ रहा हूँ। मैं तो आपसे अरबी पढ़ के बात करता हूँ, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती भी नहीं है। बिग बैंग की थ्योरी जो है, हाँ साहिल भाई आप खुद बताइए, बिग बैंग की थ्योरी ये एक ही बार पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैल गई? अगर आप लोग बिग बैंग मानते हो, या बंदर वाली तारीख एक ही बार क्यों नहीं फैल गई? उन्होंने कहा एक बार सबको पहुंच जाना चाहिए, जैसे अल्लाह जब भेजता है तो अल्लाह का कलाम जो है सब तक पहुंच जाना चाहिए एक ही बार। तो बिग बैंग की थ्योरी, कोई भी थ्योरी
एक ही बार हर इंसान तक कैसे पहुंच सकती है। इसीलिए कहा या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जो बात आपको पहुंचाई जा रही है, आपको जब तक जो उतारी जा रही है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। शायद नेटवर्क कमजोर हो गया भाई क्या। लगता है साहिल साहब, एक मिनट भाई, साहिल साहब लगता है ड्रॉप हुए हैं, नेटवर्क इशू हुआ होगा। नेटवर्क हमने वही अच्छा कहा, हमने वही कहा, जी जी, नेटवर्क जी। यहाँ पे ये बताएं, यहाँ पे लिखा है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, है ना। जी यहाँ जी पे अल्लाह खुद को पेश कर रहा है, लेकिन इसके हाँ पहले जो आयत थी उसमें हाँ अल्लाह क्या कह रहा है? कौन सी आयत आपने अल्लाह पढ़ी थी ला इसके इलाहा पहले? इल्ला हु, हाँ अल्लाह ला हाँ, इलाहा जो इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। बिल्कुल, तो हमने यही बात की कि नहीं क्या नहीं, वहां पे जो देखिए, हुआ हाँ था वहां पे हुआ क्यों लाया जा रहा है? अल्लाह कह रहा है वो अल्लाह, तो हाँ ये लफ्ज अल्लाह क्यों ला रहा है? जैसे एक ये तो भाई फिर आप अल्लाह का कलाम नहीं ना हुआ। ये तो नहीं नहीं नहीं, ये तखातुब का तरीका होता है। आप तखातुब जानते हो? अरे बिल्कुल जाता हूँ, मैं भी आलिम हाँ, दीन हूँ। तो मुखातब दो हो चाहे तरीके से हम भी तखातुब बोल हो, सकते हैं। ठीक है, जैसे जो मैं आपसे कहूँ, मुखातब जैसे कर रहा है, सुनिए साजिद भाई, तखातुब कौन है इसमें? नहीं नहीं, हाँ तो तखातुब कौन है सुनिए, वहां अब पे? सुनिए, अब सुनिए कि आप जो ये बताएं तखातुब कौन है? अरे जैसे लोगों को जब मुखातब किया तो पूरी इंसानियत है। तो नहीं नहीं, अल्लाह मुखातब कर रहा है किसको वहां पे? अल्लाह मुखातिब है, अल्लाह मुखातब कर रहा है इंसानियत को, और इंसानियत को वहां पर हुआ हाँ, क्यों ला रहा है फिर? अब वो मुखातब कलाम करने अल्लाह पर का है ना। पहले कुछ बातें तो अपने बारे में बताई जाएगी, पहले हुआ कुछ बातें हुआ तो का बताई मतलब बतला जाएंगी। दीजिए, हुआ की हुआ का मीनिंग मतलब बतलाइए। सुनिए वो सुनिए, हुआ का हाँ मतलब वो अल्लाह है ही, ना। अब सुनिए हसर के माने, इल्ला के बाद जब हुआ आता है तो हसर के माने देता है, यानी जो है अल्लाह। ये जो बलागत है, ये अरूज है, हाँ ये तो बाद में इजाद की गई, लेकिन वहां पे हुआ का अरे मतलब वो बलागत, होता है। यहाँ पे सिंपल बलागत है, इन्ननी बलागत और उरूज, अनल्लाह, सुनिए अब सुनिए, बात इन्ननी सुनिए। अनल्लाह ला इलाहा इल्ला, यहाँ तो समझ आ रहा है। लेकिन हाँ वहां पे जब हुआ का इस्तेमाल हो गया तो वो तीसरा तो बंदा भी यहाँ इस्तेमाल हो भी रहा है ना वही है, वहां पे, इन्ननी अना डायरेक्ट खुदा। अल्लाह, सुनिए साजिद भाई अब हम्म एक मिनट दीजिए। वहाँ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, यहाँ ला हम्म इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये दोनों यानी इल्ला के बाद जब नहीं, कोई, जब हाँ सुने, इल्ला के बाद जब कोई लाम दाखिल हुआ या हरफ तानीस आ गया, ये नहीं पूछ रहा हूँ। हुआ जब इस्तेमाल हो गया तो हाँ डायरेक्ट अल्लाह मुखातब खिताब नहीं कर रहा है, नहीं अल्लाह नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट, खिताब नहीं कर रहा है। वो लफ्ज किसी और का है, फिर वो लफ्ज अल्लाह का नहीं है। हुआ का सेगा इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। सुनिए सुनिए अब बात हुआ का सुनिए। हाँ सेगा है तो तो उसके बाद अपना नाम नहीं ला सकता। इस आयत में, इन्ननी हवल्ला उसने कहा है। इस आयत में, इस आयत में ताहा से लेकर के लहुल अस्माउल हुस्ना तक ये तमहीद है, यानी अल्लाह अपना एक तारुफ करा रहा है। उसके बाद हल अता अच्छा, का ताहा, हदीस मूसा, आपने शुरू किया था ताहा से, चलिए ताहा पर ही हाँ बात कर लें, फिर इसके बाद जो इसकी आयत आई थी तो हम उसको अगर स्क्रीन पर आ जाएगा तो बात कर लेंगे। नहीं ताहा पहले से क्या पहले मुराद है? जो बात है, अब किस पे किस शुरू किससे पे, होता है? ये आयत शुरू ताहा से, ताहा से होती है ना। हाँ तो फिर ताहा से। ताहा की मीनिंग बतला दीजिए आप, ताहा की क्या मीनिंग है? ये कोड वर्ड है, हर चीज का कोड वर्ड क्या होता कोड है। वर्ड है? देखो अच्छा, खुदा कोड कहता वर्ड है। है, सुने हाँ सुने, खुदा कहता है कि हमने हाँ इस कुरान मुबीन में सारी आयतों को खोल खोल करके हाँ वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया, अच्छा एक लेकिन मिनट, ताहा एक मिनट अब शुरू ही सुनिए, होती है जिसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम। वयखलुकु मा ला तालमून, आप अल्लाह ने तो ये भी हम्म कहा, अल्लाह ताला वो चीजें भी पैदा करेगा जो तुम्हें नहीं पता है, उस जमाने में कह रहा है। तो वो पैदा की यानी हुई चीज नहीं, ताहा एक वर्ड है भाई। हाँ जलेबियां ना घुमाए, खुद समझे, आप नहीं, आलिम दीन है, पढ़े लिखे हैं तो समझे। आप कह रहे हैं मखलूक की किसी बात नहीं हो रही है, कुरान खाली का कि मखलूक है उसकी बात भी नहीं हो रही है, तखलीक करता है। बात हो रही है कि तखलीक एक करता है, ऐसा किसकी वर्ड तखलीक करता है, इस्तेमाल किसकी करना, तखलीक करता है, एक, किसकी अरे तखलीक वो करता है। बात छोड़िए, हम इसीलिए बता नहीं रहा हूँ आप ना, बताइए, खालिक नहीं, मखलूक पहले की इसी बात नहीं बात हो कर जाए, रहे। पहले कुरान की तखलीक पर बात हो जाए, किसकी तखलीक करता है बताइए। नहीं, आप देखिए भाग रहे हैं, जिसपे मैं मैंने भाग आपकी नहीं रहा हूँ, गिरफ्तारी की है, मैं पहले उसी उस पे मैं आप उसी बात पर कर रहूंगा। लीजिए, अगर फिर आप उस पे मौका चलते देंगे, हैं। अगर मौका आप देंगे तो मैं उसी पर रहूंगा। पहले इस पे बात के लिए, हाँ, जैसे उन्होंने ना ना कहा ना कि ना, मैंने नहीं आप छेड़ी है बताइए ना, बात तखलीक ताहा पे से, बात कर लीजिए, ताहा पर बात तखलीक पे। कर लें, तो ताहा पे ताहा बात तो कर हमने लें। कहा कोड वर्ड है, कोड हाँ, वर्ड तो है। कोड वर्ड है। अल्लाह ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड इंसानों के क्यों जीने के इस्तेमाल कर सारे रहा है? तरीके, इंसानों के जीने के सारे तरीके कुरान और फिर कुरान की एक तशरीह मिनट जो भाई, दूसरी किताबों व्हाट्सएप से। अच्छा अब उधर चले गए। कुछ अच्छा, यार मेरी आवाज आ रही है भाईजान? जी जी अच्छा, एक मिनट आप खामोश रहिएगा भाई। बैक स्टेज से कोई एक शख्स निकल जाए, क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ और बैक स्टेज फुल है, तो कृपया करके मेहरबानी करके कोई एक शख्स निकल जाए। साहिल भाई का मैसेज आया है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहरबानी होगी। और कोई अभी जुड़ने ना पाए, स्पेस नहीं है और मैं किसी को निकाल नहीं सकता, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, बराए मेहरबानी कोई एक शख्स निकल जाए।
जी भाई, बैक स्टेज में जितने लोग हैं उनमें से कोई एक निकल जाए या दो निकल जाए। लाला जी और साहिल भाई आने वाले हैं, आ नहीं पा रहे हैं, स्पेस खाली कर दें थोड़ा। अच्छा, साहिल भाई का मैसेज देखिए आ रहा है। साहिल भाई ट्राई करते रहे, देखते हैं। अब मैं मोबाइल से भी जुड़ा हूँ तो मैं हटा भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता यार। मैं सिस्टम से रहता तो कर लेता। बहर कैफ, बैक स्टेज में कोई भाई भी हैं, एक दो आदमी छोड़ दें वहां से, फिर आप दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे साहिल भाई। जी भाई, आपसे बात हो रही थी तोहा पर। तो अल्लाह ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है जिसकी मीनिंग किसी को नहीं मालूम? खुदा दूसरी जगह कुरान में कहता है कि मैंने इसमें सारी चीजें खोल खोल के वाज़ेह तौर पे, निशानियों के तौर पे बयान कर दी। लेकिन उसी किताब में तोहा है, यासीन है, काफ हा या इंसाद है, नून है, वल कलम व मा यस्तरून, अलिफ लाम मीम, है ना। तो ऐसा वर्ड, ऐसा जुमला लाने से फायदा क्या है? क्योंकि जो कुरान आया है वो किसके लिए आया है? उम्मत मुस्लिमा के लिए आया है, नहीं, मुसलमानों के लिए नाजिल हुआ है। कुरान सारी इंसानियत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए खाली नहीं आया है। वो तो बाद में देखेंगे ना, सारी इंसानियत के लिए है अभी कि देख नहीं, लीजिए, इंसानियत पे बाद में चलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ अभी देख मुसलमान जो लीजिए। पढ़ते हैं, तो बताइए, जब मुसलमान या सारी उम्मत मुस्लिमा मान लीजिए, ये गैर सारे। मुस्लिम भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारे एथिक्स भी पढ़ते हो, पढ़ के मुस्लिम हो जाते हैं। चले ठीक है, ठीक है, सारे पढ़ते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। मसला ये है कि जब लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है खुदा हमसे पैगाम क्या दे रहा है, कलाम क्या कर रहा है, तो फिर ऐसा वर्ड इस्तेमाल करने से फायदा। गव्वास को मतलब है सदफ से कि गुहर से? एक बात बताइए। गवास का मतलब है कि जिंदगी सदफ से जीने या के बाहर सारे से। तरीके, इतना गाढ़ा वर्ड बोलने से अगर मैं ही कह दूं गिलाफे औजार मज़ाहिब मोहब्बत बंदिश इजाफे नस्ल, तो फिर बेवकूफ़ी है। ऐसा वर्ड बोलिए जो पब्लिक नहीं, को भी समझ आए, मैंने एक शेर पढ़ा, मैंने है ना। बस एक शेर पढ़ा। गव्वास मतलब कोई तो भारी लफ्ज नहीं है। सदफ जानते होंगे, सीपीयू कहा जाता है। नहीं, मुझे समझ आ रहा है यार, पब्लिक को भी समझाना है ना। नॉन मोमिन भी देख रहे हैं, मोमिन भी देख रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ, सदफ की बात, हीरे की बात, मोती की बात बाद और में कर लेते हैं। करने में कोई भी उसका हक अदा नहीं कर सकता है। यानी आप मानते हैं अच्छा, कि ये खुदा सवाल जवाब ऐसा बना कोई रहे हैं। वर्ड ला रहा है जिसका मीनिंग कोई नहीं जानता। जी, तब से साहिल भाई लिख रहे हैं, आप इसकी मीनिंग बताइए। तोहा के माने आपको नहीं मालूम आपको पता है? ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ खुदा ऐसा वर्ड क्यों ला रहा है कुरान में, ऐसा जुमला, ऐसे अल्फाज क्यों ला रहा है। काफ हा या ऐन स्वाद, नून बिग वल बैंग कलम मतलब वमा क्या है? बिग यस्तुरून। बैंग का मतलब क्या है, साफ बताइए। बिग बैंग हम्म कुरान में है। नहीं, कुरान की बात नहीं नहीं बिग कर बैंग नहीं, की रहा एक थ्योरी है। एक मिनट, एक आपके मिनट, एक तरीके एक बता एक रहा हूँ। मिनट, बिग एक बैंग मिनट। क्या है? ए भाई 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 भाई, आवाज आ रही है मेरी साजिद? आ रही जी भाई, साहिल भाई आ रही है। हाँ, आ रही है साहिल मेरे साहब। को ये बताओ, ये ताहा का मतलब से बिग बैंग का क्या लेना देना? नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि ताहा के मतलब क्या होता है, तो हमने हाँ, कहा कि क्या बहुत होता है? सारे अल्फाज होते हैं जो कोड वर्ड होते हैं, तो ये उसमें कठुज्जती कोड, कर रहे हैं कि कोड वर्ड मतलब जो ऐसी बात अल्लाह क्यों कह रहा है लोगों से जो लोग समझ ना पाए। तो हमने ये अच्छा, कहा। ये कोड वर्ड जो है, एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट भाई, कोड हाँ, वर्ड अल्लाह ने हिदायत की किताब में क्यों डाला है? अच्छा, तो बिग बैंग का मतलब बताया ना, क्या मतलब होता है उसका। अरे बिग बैंग तो से मैं और वही कोड आऊंगा, वर्ड से क्या लेना देना? मैं वही आऊंगा। जैसे बिग बैंग की थ्योरी आपने घड़ ली है, तो ऐसे हम भी हम्म, चाहें तो हम भी ताहा की थ्योरी घड़ लें। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ताहा आप सल्लम को ओए लकब होए मिला है। होए, मतलब भाई, अलिफ लाम मीम तोहा यासीन, ये सब जो गढ़ा गया है सिर्फ खुदा और मोहम्मद अरबी की तरफ से, ठीक नहीं है। नहीं, तो घड़ा नहीं गया, हाँ, इसीलिए तो घड़ा नहीं गया ना, इसीलिए तो उसका क्या है तर्जुमा नहीं किया ये गया हरूफ सही से। मुकत्ता, घड़ा ये नहीं फिर गया, जो अल्लाह हरूफ ने जिस तरह मुकत्तात कह क्या दिया। है? हाँ, हरूफ मुकत्तात क्या है? हरूफ मुकत्तात ये सब क्या है? इनको हुरूफ नूरानिया भी कहा जाता है, हुरूफ हाँ मुकत्तात हाँ, हैं। ठीक हाँ, है, तो क्या है ये? कुरान में खास तौर से जो इस तरह के अल्फाज आए हैं उनको हुरूफ मुकत्तात का नाम दिया गया है। इनका तर्जुमा मुतकद्दिमीन में से या मुताखिरीन में से बहुत से लोगों ने कोशिश की है, लेकिन यानी सरीह तौर पर और राजे कौल के मुताबिक इसका तर्जुमा यानी किसी ने नहीं किया है। सब तो ताहल सब भाई ने जब ताहा सवाल नबी ने नहीं आपसे, बताया। जी जी साहिल हाँ, साहब। हाँ, मैं थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ। सवाल फिर से यही आ रहा है आपके ऊपर कि अल्लाह ने ये कोड वर्ड क्यों डाला है? नहीं, कोड वर्ड बहुत से आप भी डालते हैं। हमने कहा बिग बैंग के बारे में बताइए, उसका मतलब क्या अच्छा, होता एक है बात बिग बैंग। बताइए, सलमान नहीं, आप साहब, बताइए ना पहले। सलमान साहब, सलमान हाँ साहब, मेरी एक बात हाँ, सुनिए। जी जी, एक किताब जो गाइडेंस के लिए है, ठीक है, बिल्कुल। मिसाल हाँ, के तौर पे तो बिग बैंग एक की थ्योरी गाइडेंस पानी, के लिए नहीं है। भाई बिग बैंग से इसका क्या लेना देना, ये बताओ। बिग बैंग क्या अल्लाह का कोई कलाम है? मेरा लेना देना नहीं, मैं तो अल्लाह ने जिस तरह मुझे दिया मैंने उस तरह ले लिया, मैंने हाँ, कठुज्जती तो नहीं की। क्यों नहीं, उसका मतलब क्या है लेकिन?
एक मिनट, हमने वही कहा ना, जब बिग बैंग का मतलब आप बता देंगे तो मैं बता दूंगा। बिग बैंग जो है एक थियरी है, नहीं, ठीक है, थ्योरी जिसमें बताया तो आप कह रहे हैं ना, तो थ्योरी हाँ, है तो इसका वजूद क्या है? हम कैसे मान ले कि बिग बैंग का वही मतलब होता है? तो अभी कौन हम बोल रहा है तारीफ आपको को बिग मतलब बैंग बताते को हैं तो आप मानने के लिए या नहीं मानने के लिए? हाँ, बिग बैंग कोई हिदायत की किताब है या हिदायत की नहीं, थियरी है बिग बैंग की? आपके एथिक्स लोगों की हिदायत की थ्योरी है भाई, कैसे कह रहे हैं आप? कौन सी? नहीं, किसने कहा? क्या जिसको हाँ? बिग बैंग नहीं पता है वो हाँ। क्या एथियस्ट नहीं बन सकता? अच्छा, क्या जिसको ताहा का माने नहीं पता वो मुस्लिम नहीं बन सकता? बताइए। नहीं, हाँ, सवाल अगर ये इनकार है कर दें, अगर इनकार कर तो दें नहीं नहीं, एक मिनट तो साजिद, क्या एक मिनट इनकार एक मिनट करेंगे? एक मिनट क्या एक इनकार मिनट एक करेंगे? मिनट एक मिनट एक मिनट साजिद, एक मिनट। सवाल आपसे ये है सलमान भाई कि जो हिदायत की किताब है उसमें कोड वर्ड में बात क्यों हो रही है? नहीं, इसका कोड जवाब वर्ड चाहिए। अच्छा, आप इतने दिनों से तहकीक कर रहे हैं, कभी आपने इस पर तहकीक की है? एक दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ वारिजी तौर पर, बताइए। किस पे? अरे वो काहे वो सिद्धार्थ काहे टिप्पणी कर रहे हैं बीच में? अभी उन पे शुरू हो जाए तो फिर अरे कल उन्होंने भाई रिमूव कर दिया तुम, अपने प्लॉट से मुझे। भाई 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 तुम यहाँ पे हाँ, हमारे सवाल का जवाब दो, ठीक है, कि ये हाँ, कोड वर्ड हिदायत की किताब में कोड वर्ड में बात क्यों हो रही है? आप तो सवाल से जाहिर सी भागे नहीं। बात है, एक कुरान को आप एक जामे किताब मानते हैं ना? हाँ, ओके, तो जामे किताब में एक लफ्ज वाला एक दो अल्फाज भी होंगे और जो है बहुत यानी शरह बस्त के साथ बातें बताई जाएंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी नहीं जो आपको समझ में ना आए, जैसे ता नहीं, है आपको समझ में जो नहीं आएगी। जामे का डेफिनेशन बताए, जामे का जामे हर चीज को डेफिनेशन। जमा करने वाली, ऐसे अल्फाज जमा करने वाली जो अपने माने दे, और ऐसे अल्फाज भी जमा करने वाली जो अपने माने ना दे, वो मुस्ततिर हो, उसके माने सिर्फ अल्लाह मतलब जानता हो। मतलब सुनो सुनो सुनो, हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुरान में बेमतलब वाली बातें भी है? नहीं बेमतलब वाली नहीं है, उसका मतलब है, लेकिन अल्लाह उसका ने ये क्या कहा है कि मतलब है? हमने मुख्फी कर रखा है। उसका मतलब क्या है? अरे यार, ये जब हमने कहा ना कि जब जामे किताब है तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसे अल्फाज भी होने चाहिए जो मतलब ना दे। जो उसका बेमतलब हो? मतलब सुने, बेमतलब नहीं, वो अल्लाह जानता है उसका मतलब, अल्लाह ने वाजे नहीं किया है, हो सकता है किसी जमाने में अल्लाह वाजे ने कर दे। कुरान, एक मिनट एक मिनट, अल्लाह ने कुरान इंसानों के लिए भेजा या अपने लिए भेजा? ये आप गलत लिख रहे हो, ये देखो कुरान में बेमतलब वाली बातें भी है, ये आप गलत लिख नहीं रहे नहीं, हो मेरा साहिल भाई। सवाल, मेरा सवाल भाई, मेरा सवाल प्लीज, अल्लाह ने कुरान इंसानों के लिए भेजा या अपने लिए भेजा? कुरान को अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, और ये अच्छा, कहा मैं कि एक जितना मिनट हम एक बताएं मिनट उतना एक जानो, मिनट जितना बताएं एक उतना मिनट जानो, जो ना बताएं एक उसको मिनट जान। हाँ, भाई, एक मिनट एक मिनट, हाँ, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, राइट? जी, यानी उस किताब में जितनी बातें बताई गई हाँ, वो सारी की सारी समझ में आना चाहिए। नहीं बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, लेकिन इंसान के ताहा दिमाग का और मतलब इंसान की अकल। समझ में आना चाहिए, आपने कहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा समझ में आना चाहिए, और बिल्कुल अच्छा, परफेक्ट कहा आपने कि समझ में आना चाहिए। ताहा का हाँ, मतलब हाँ, समझा दे, हम्म, मतलब समझा दे। हम्म। हूं क्या, खत्म हो गए आप? नहीं अभी नहीं, आप इसी खत्म वजह नहीं, से अरे मैं कहीं और ये मैं कहीं और हथियार बोल रहा था। इसी वजह से, सलमान साहब, मैं ये हथियार इसी वजह से रखता हूं ताकि आप लोगों की बात से आप खुद पलटी ना मारे। अभी नहीं, आपने मैं ये पलटी कहा बिल्कुल नहीं कि मार रहा हूँ, कुछ, अरे भाई हाँ सुनिए, सुनिए। हाँ, तो मतलब आप जो समझा है, दे फिर ताहा का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर बातें समझाई हैं, तो एक जामे किताब है, तो जामे किताब में दोनों बातें होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे अल्फाज भी हो जिनके माने पता हो, ऐसे अल्फाज भी हो जिनके माने जो है ये हाँ, ये अरे भाई लेकिन आप जो कह रहे आपने हैं अभी समझ क्या रहे हैं ना। कहा, एक हाँ, मिनट साजिद, एक मिनट, हाँ ये हाँ, अपन कंक्लूड करते हैं। अभी आपने ये कहा कि जितनी जो हमने हिदायत पहले ही की इश्काल किताब किया, जो होती है, बातें आप लिख रहे थे हमने पहले इसीलिए इश्काल किया है कि आप ये गलत लिख रहे हैं। भाई सुनो, आपने ये कहा कि जो हिदायत की किताब होती है किसी के लिए भी, उसमें सारी की सारी बातें समझ में आनी चाहिए, और आपने कहा था हाँ समझ में आनी चाहिए। हम्म, तो अब ताहा का मतलब समझा दे, वरना आप बोलिए कि ये बेमतलब वाली किताब है। नहीं नहीं, किताब भी अच्छा, वो आपके दिमाग में कोई बात समझ में ना आए तो आप कैसे ऐसे कह दो कि बेमतलब किताब है?
अरे मेरे समझ में, आपके समझ में, किसके समझ में आया ये? अगर मेरे समझने के लिए किताब है तो मुझे तो समझ में आना चाहिए, या कोई अब सुनो समझाने चाहिए। सुनिए सुनिए, ये हज़रत अली फरमाते हैं कि हाँ। हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह के अस्मा में से हैं, अल्लाह के नामों में से हैं। आई बात समझ अच्छा, में? मतलब ये नाम है, ताहा नाम है अल्लाह का। नाम हुरूफ मुक़त्तआत ये जो है, जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, हामीम अच्छा, है। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि नबी ने कहा है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हुरूफ हज़रत अली ने मुक़त्तआत में से फरमाया, एक वर्ड नबी ने है नहीं, हज़रत अली ने यासीन। फरमाया है। चलिए हजरत अली ने मान लेते हैं, यासीन किसका आप है? मानते कि नहीं मानते? नहीं, जी जी, आप किसका नाम है? आप मानते हैं कि नहीं हुरूफ उसको? हजरत अली का कौल, हजरत अली ने कहा, सुनिए, हजरत अली ने हाँ। कहा अगर चौथे खलीफा ने, तो आप उस पर ईमान रखते हैं कि हाँ ये सच कहा उन्होंने? नंबर एक, मैंने जो पहले बात कही कि जब नंबर एक नहीं, हाँ या ना? इसका फिर आगे जवाब। बढ़ते हैं ना। अगर आपका उस पर ईमान है जामे हजरत अली के कौल पर, किताब गलत बात कर रहे हैं। देखो जामे भाई लोग, किताब है, एक मिनट वो एक हर मिनट एक तरह मिनट के एक मिनट भाई, अभी सवाल हर तरीके की बात पे नहीं है, सवाल इस बात पे है कि जो हिदायत की किताब है, जो इंसानों की हिदायत की किताब है, क्या उसमें ऐसे अल्फाज होना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं, जिसके लिए हिदायत के लिए भेजा गया उसी को नहीं मालूम है कि इसका क्या मतलब है, तो वो यूजलेस वर्ड हो जाएंगे। अगर उसका नहीं, मतलब ही नहीं मालूम तो वो यूजलेस है। नहीं यूजलेस नहीं है, उसका माना अल्लाह तबारक क्या व यूज है तआला उसका ने बताइए। वफ़ी रखा अच्छा, है, अगर वफ़ी रखा अगर ताहा, एक मिनट, आप अभी 2-3 जगह से भागे हैं। मैंने आपसे ये नहीं, पूछा कि क्या अभी अल्लाह का सिर्फ नाम यहीं है? पे है, भागे कहाँ हैं? हाँ, तो फिर बताएं ना, अगर इसका यूज है ताहा, इस वर्ड का हम्म, कोई यूज है हम्म। इंसानों के लिए, तो वो यूज बता दीजिए, किस यूज के लिए, इंसानों के किस यूज के सुनिए, लिए? आप सुनिए, इसका यूज कई तरह से हुआ है। हज़रत अली फरमाते हाँ। हैं कि इनमें जो अलिफ लाम रा है, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, और इस तरह से, तो ये अल्लाह के नामों में से है। दूसरी बात मतलब ये है, नहीं नहीं दूसरी नहीं बात, नहीं, एक मिनट, हम्म, क्या आप मानते हैं अलीफ लाम मीम और ताहा हाँ, हाँ, और यासीन हम्म। ये अल्लाह के नाम है? ये हजरत अली का कौल है। हमारा तो आप मानना ये मानते है, हैं कि नहीं सुनिए, मानते? हमारा क्या मानना है, हमारा मानना ये है अरे कि जब भाई, अल्लाह आप से, जो सुनो सलमान भागने का नहीं। आप जो मानते हैं वो कॉल पेश करेगा, जिस कॉल को आप खुद नहीं मानते हैं वो आप पेश मत करिए। आप अगर हजरत हम अली की इस देखिए, बात को हम नहीं बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं दुनियावी उमूर में भी कि हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं कि हर चीज का मतलब नहीं पूछते हैं। आप हर चीज का मतलब पूछते हो। मतलब ये अल्लाह के नाम है क्या नहीं है, आप आप मानते हैं अपने कि नहीं नहीं, मानते? अभी आपको बात बुरी लगेगी लेकिन बुरा मत मानिएगा। आप अपने हाँ। वालिद से उस हिस्ट्री के बारे में पूछते हो जो आप और आपकी वालिदा के बारे में पेश आया, जिससे आप वजूद में आए, पूछते हैं? नहीं, लेकिन नहीं पूछते हैं। मुझे मालूम है ना कैसे नहीं मैं नहीं वजूद में नहीं, आया। नहीं हो सकता अलग से वजूद, कोई अलग तरीके से वजूद में आप आए हो। ऐसे कैसे आप अलग पूछते तरीके हो? से होता है? हाँ? अलग तरीके से वजूद में आता है? आप बिना आपके माँ बाप के या हम बिस्तरी के अलग से वजूद में आए? बिल्कुल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कोई जो है माँ बाप नहीं थे, हज़रत ईसा अरे वो अलैहिस्सलाम के साबित बाप नहीं कैसे थे। करोगे? हाँ? साबित कर दो। अच्छा, रोबोट बनाते हो, रोबोट के माँ बाप होते हैं? बताओ। अरे वाह, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए यार, तालियों की भड़गड़ाहट पूरा तो चैट भर दो इंसानों की, तालियों से। नंबर एक एक, मिनट, सुनिए, अरे भाई एक मिनट भाई रुक जा। हाँ जी साहिल भाई। रॉबर्ट माँ बाप से आते। भाई गुलाब फेंक दो भाई के लिए यार, हमने इतनी मोहब्बत से आप जब बोला। आय ज्यादा हाय, अब तफसील में वाह जाने लगे तब हमने ये बात कही। आप बुरा मत मानिएगा, मैंने भाई फिर रुके, भी कहा, अरे बाप रे हमने बाप, थोड़ा सा अरे हमारा मानना बाप ये रे है, हंसने भी बाप। दे हमारा मानना ये है, भाई, अब थोड़ा सुनिए, हंसने दे दें एक हम मिनट। इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, हम इनको हुरूफ एक मिनट, मुक़त्तआत कहते हैं। इसकी बहुत सारी तफसीरें की गई हैं, लेकिन जो राजे कौल ये है कि इसके माने अल्लाह जानता है। जब अल्लाह ने जो है इनके माने नहीं बताए हैं तो हमें उस बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। इंसानों के दूसरी लिए बात, बेमाना है, राइट? हाँ? नहीं, इंसानों के लिए बेमाना इंसानों कैसे? के लिए बेमाना है। इंसान की अरे पहुंच जब उतनी नहीं उसका है। मतलब ही इंसान मुझे अपनी नहीं पहुंच, मालूम तो मेरे लिए, इंसान भाई भाई नहीं, भाई अल्लाह भाई, ने ये कहा है इसको बेमतलब किसको पढ़ो। कहते हैं? एक मिनट, सुनिए बात, सुनिए, बेमतलब, बेमतलब अरे किसको सुनिए कहते तो, हैं? सुनिए बात सुनिए। आप बेमतलब तो हाँ, आप कह रहे हो, बेमतलब आप कह रहे हैं, हमने कहा, हमने ये थोड़ी कहा बेमतलब, हम कह ही नहीं रहे, आप कह रहे हो मैं बेमतलब। बेमतलब का
सुनो, बेमतलब हाँ। का मैं मतलब पूछ रहा हूं आपको, बेमतलब को डिफाइन करें, बेमतलब किसको कहते हैं? बे मतलब आपने कहा है, हमने बा मैं मतलब एक कहा है, मिसाल हमने दूं, ये कहा है मैं बा एक मतलब मिसाल है, दूं बेमतलब लेकिन की, अल्लाह भाई ने एक, अरे रुक जा भाई, मैं एक मिसाल दूं बेमतलब की, बेमतलब की मिसाल दूं आपको? कौन सी मिसाल देंगे? कुरान, अल्लाह के कुरान से और आपकी बात जो है दोनों बराबर हो जाएगी क्या? अच्छा बताइए। साहिल साहब की आवाज नहीं आ रही है भाई, एक जैसे सवाल मेरा जैसे था, चल एक मिनट इंसान भाई भाई, अपने, वो साहिल भाई आएंगे तो उनसे सवाल कर लीजिएगा। मेरा सवाल एक था, इसके आप पहले लोगों आपने से कहा बहस हो था, रही थी इन्ननी अल्लाह पे, अल्लाह ला इलाहा इल्ला पे, सुने, लेकिन आप ठीक है ठीक, एक चीज थोड़ी वो सी लाला जी से बात हो रही थी, वो सुने, डिफिकल्ट वो लाला लगी। जी से बात हो हाँ रही हाँ, थी, नहीं और वो अभी जो बात हो डिफिकल्ट रही लगी, थी सवाल साहिल साहब मतलब से। डिफिकल्ट लगा, अब उस तीसरी पर आप मुझे बात फंसाना चाह रहे हैं। सुने, तीसरी बात मुझसे कर लें, तब तक साहिल भाई अगर आते हैं, उनकी कुरान, आवाज चली गई है, मैं नेटवर्क आप ही से प्रॉब्लम बात होगा। करना चाहता हूँ कि कुरान में सिर्फ हाँ एक लफ्ज नहीं है, कुरान पूरी की पूरी सुने, जो है, हाँ, पूरी मेरी बात पूरी सुने, मेरी बात सुने यार, थोड़ा खामोश रहे। मैं एक सवाल करता हूँ, उसके बाद लाला जी आ गए, वो सवाल करेंगे। आपने कहा था कि हजरत अली ने मीनिंग बताइए कि हुरूफ मुक़त्ता जितने हैं वो अल्लाह के नामों में से नाम है। आपको, आपने ये कहा था, ठीक है। अब ये बताइए, हजरत अली ने जो कहा उस पर आपका ईमान है कि नहीं? लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लें, क्योंकि नबी ने अली के मुताल्लिक कहा था कि मन सब्बा अलियन फ़क़त सब्बनी व मन मैंने सब्बनी गाली दी फ़क़त क्या? सब्बल्लाह, मैंने हजरत अली को है ना? गाली दी? मैंने हजरत नहीं, अली को गाली गाली की दी? बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरी फिर बात पूरी सुन हजरत ले। अली, और हजरत अली की बात जो ना माने वो दूसरी काफिर हो जगह जाएगा। दोस्त हजरत अली सुने की यार, बात, हजरत पूरा सुनिए बात स्टेटमेंट तो सुनिए सुन पूरी, ले, यही फंस मेरा रहे हैं पूरा आप, फंस स्टेटमेंट रहे सुन हैं। ले, मेरा स्टेटमेंट एक सुन ले। सेकंड यार, हाँ यार साजिद भाई, इसको बोलने की बहुत ज्यादा है, वो पीछे इसके ना वो मिट्टी भी है उसके अंदर। तो जी। बड़ी देर पहले से मैं सुन रहा था, वो अली वाली हम्म, स्टेटमेंट को मान भी नहीं रहा और कहना भी नहीं चाह रहा कि मैं नहीं मानता।